ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਾਨਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ PSPCL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, a sum of rupees 2800 is lent out in two parts, one at 12% and another one at 9%. If the total annual interest received is rupees 288, find the amount lent at 9% rate। यानी कि वो कहता 2800 रुपये ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ 12% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ 288 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈਂਟ ਐਟ 9% ਰੇਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ 9% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਵੀ 2800 ਰੁਪਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ A ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, B ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ 12% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ 9% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ 12% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ। ਤਾਂ 12 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 9% ਪਲੱਸ 3%, ਇਹ 12% ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12% 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 9% 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 288 ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਓਵਰਆਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ A ਅਤੇ B ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਅਤੇ B ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ 2800 ਹੈ। ਤਾਂ 2800 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਨ ਕੀ ਹੈ, 9% ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ A ਅਤੇ B ਦੇ ਉੱਪਰ 9% ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, 8 ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 72, 9 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 18, 18 7 ਕਿੰਨਾ 25, ਯਾਨੀ 252 ਰੁਪਏ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ A ਅਤੇ B ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰਆਲ 9% ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 2800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ 9% ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 252। ਪਰ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 288। ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 288 ਲੱਗਿਆ ਓਵਰਆਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ 36 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ 36 ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 3% ਕਰਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 3% ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 36 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 36 × 100/3 ਯਾਨੀ ਕਿ 1200। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 1200। ਸੋ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 1200 ਅਤੇ 2800 ਚੋਂ 1200 ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 1600। ਅਤੇ 9% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਓ 1600 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ when 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 + 3 is divided by 6। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 8/6 ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ 3 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 1 + 3। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4/6, ਯਾਨੀ 4 ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਹੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 4 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖੋ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, 3 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। 7 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ 1 ਨੂੰ ਅਗਰ 8 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਇਆ। ਔਰ 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 3, ਯਾਨੀ 3 ਤੇ 1 ਹੋ ਗਿਆ 4। 4 ਨੂੰ ਅਗਰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 4 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
कहता इफ़ द नंबर एक नंबर है साढ़े कोल 234117 PQ यानी कि कंप्लीट नंबर की है 234 PQ एक नंबर है। कहता ये नंबर इज़ डिविजिबल बाय 99 ये नंबर है जेड़ा ये 99 ते डिविजिबल है। वट आर द वैल्यू ऑफ P एंड Q तो दसो बच्चों P ते Q की वैल्यू होणगियां। पहली गल तो बच्चों देखो ये नंबर है जेड़ा 99 ते डिविजिबल है। जे ये नंबर 99 ते डिविजिबल है यानी कि ये नंबर 9 ते भी डिवाइजिबल हुंदा होगा ते 11 ते भी डिवाइड हुंदा होगा। सो जे 9 ते डिविजिबल ये नंबर है यानी कि इन्हां सारिਆਂ ਦੇ नंबर्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यानी कि इन्हां ਸਾਰੇ नंबर्स ਦੇ डिजिट्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। सो 2 ਤੇ 3 कितना हो गया 5 5 4 कितना हो गया 9 देखो आप ऐड कर लेने 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 1 10 10 + 1 11 11 + 7 18 18 + P + Q यानी कि इत्थे तक 18 है। जे अगे 9 ते जोड़ होना चाहिए यानी कि फिर असी कह सकते हैं भी P ते Q का जोड़ा जोड़ है वो 9 होना चाहिए क्योंकि 18 तो बाद अगला नंबर 27 आता है जो 9 ते डिवाइड होता है। यानी कि P ते Q का जोड़ 9 होना चाहिए। सो P ते Q का जोड़ 9 होना चाहिए तो जे ऑप्शन दे विच देखिए तो सारिਆਂ ਦਾ जोड़ P ते Q का 9 बनता है। हुण डिपेंड करता है सानू 11 का। हुण दूजा रूल की चेक करना भी 11 का। हुण 11 का रूल की कहता है भी इत्थों स्टार्ट करो जिवें कि आ डिजिट्स ने जिहड़े 7 देखो ये आपां जे करना भी यह Q + 7 7 तो बाद फिर विच 1 + 3 यानी कि ये आपां पढ़िया होया। देखो ये तुहानूं डिविजिबिलिटी के रूल ने थोड़े जे याद होने चाहिए ने भी ये इत्थों छड्ड के एक एक डिजिट छड्ड के इन्हां डिजिट्स का जिहड़ा जोड़ है ठीक है। पहला की है Q Q तो बाद 7 7 तो बाद की आया 1 1 तो बाद की आया बच्चे फिर 3 ਇਹਦਾ जोड़ तो ਜਿਹੜਾ दूजा रह गया दूजा ਕਿਹੜਾ P = 1 देखो शायद तुसी बच्चे पढ़िया होगा शायद 11 की डिविजिबिलिटी का रूल अगर नहीं पढ़िया तो बच्चे जरूर पढ़ो ठीक है। तुसी साडी ऐप दे विच जाके देख सकते हो डिविजिबिलिटी रूल का एक लेक्चर पिया होया बच्चे जरूर देखो सारे डिविजिबिलिटी रूल क्योंकि ये पंजाब लैवल के एग्जाम के एक डिविजिबिलिटी का रूल का क्वेश्चन जरूर आता है। P + 1 हो गया जी 1 + की हो गया बच्चे अगे 4 हो गया 4 + 2 की हो गया 6 यानी कि इन्हां दे अल्टरनेट डिजिट्स का जो जोड़ का डिफरेंस है या तो वह 0 होना चाहिए या फिर 11 ते डिविजिबल होने वाला कोई भी हो चाहे 11 हो चाहे 22 हो चाहे 33 हो ठीक है। चलो आप ऐड करके देखते हैं इत्थे की बन गया 7 ते 1 हो गया 8 8 से 3 कितना हो गया 11 यानी 11 + Q इत्थे आ गया 4 2 6 ते 1 7 यानी कि 7 + P यानी कि इन्हां दा डिफरेंस है जिहड़ा बच्चे वो की होना चाहिए 0 होना चाहिए 0 बनाओ इनू ठीक है। हुण जे आपां इनू 0 बनाना है तो देखो की हो सकता है। हुण वैल्यू चक्कांगे आपां 0 बनाणियां ने जे तो मैं P नू 1 पुट करदा जे मैं P नू की पुट करदा बच्चे 1 पुट कर दिए या देखो 0 नहीं बन सकता तो 11 बनावांगे 0 नहीं बन सकता तो 11 बना लो। देखो 0 तो मेरे हिसाब नाल किसी तरीके नाल नहीं बनूगा क्योंकि P की वैल्यू छोटी है P की वैल्यू वड्डी होनी चाहिए है। चलो आप 11 बना के देखते हैं। हुण देखो अगर मैं Q नू 8 पुट करदा तो इत्थे 11 ते 8 कितना हो गया 19 हो गया और इनू की पुट कर दिए आपां क्यों P नू 1 पुट कर दिए ये कितना आ गया 7 ते 1 8 हो गया 19 दे विचों अगर आप 8 कढ़ दिए 19 दे विचों अगर आप 8 कढ़िए तो बच्चे की आंदा देखो 11 ते 8 किन्ने हो गए साडे कोल 19 और 7 ते कितना हो गया 8 19 चों 8 कढ़े साडे कोल 12 11 ही आ जांदे 19 चों 8 कढ़े साडे कोल की आ जाणगे बच्चे 11 ही आ जाणगे। सो कहण दा मतलब साडे कोल Q की वैल्यू कितनी होगी 8 ते P की वैल्यू कितनी होगी 1 सो इन्हां डिफरेंस 11 आंदा है। सो इत्थों ही क्लीयर हो जाता है भी P की वैल्यू 1 आऊगी तो Q की वैल्यू की होगी 8। अगर ये नहीं होंदा तो बच्चे फिर आप अगली ऑप्शन चेक करते ठीक है ना। सो जिथे साडा आंसर आ जांदा वो साडा आंसर की हुंदा सही हुंदा। आई होप जो तो समझ आया होना। देखो सब तो पहला असीं 9 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाया भी सारे डिजिट्स का जिहड़ा जोड़ है वह 9 ते डिवाइड होना चाहिए। सो जिहदे च असीं देखिया 18 P + Q 18 तो बाद 27 नंबर आंदा जिहड़ा कि 9 ते डिवाइड होगा यानी कि P ते Q की वैल्यू की होनी चाहिए 9 होगी। तो ऑप्शन दे विच सारिਆਂ ਦਾ जोड़ 9 बनता है। फिर असीं 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाया
11 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 11। 0 ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 11 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ Q ਨੂੰ 8 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ P ਨੂੰ 1, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ₹9891 यानी कि वो कहता 9891 यानी कि 9891 रुपये ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਐਂਡ ਸੋਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी कि 9891 रुपये ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੋਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ, 2:7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 8 टाइम्स ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੁਸ਼ਾਂਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਟਾਈਮ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਸੋਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੋਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2:7, यानी कि 2 ਤੇ 7 9 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਸੋ 9891 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 9 ਏਕਮ 9, ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ 0, 9 ਨਾਮ 81, 8 ਵਜੇ ਨਾਮ 81। ਸੋ यानी कि ਇੱਕ ਪਾਰਟ 1099 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। तो ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 2 ਪਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 9 ਦੂਣੀ 18, 9 ਦੂਣੀ 18 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 19 ਤੇ 2 ਏਕਮ 2। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 9 7 63, 9 7 63, 63 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6, 69, 7 ਏਕਮ 7, यानी कि ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, 8 ਪਾਰਟ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ, 8 ਪਾਰਟ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 2198 ਦੇ ਆ, ਤਾਂ 8 ਪਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 8 8 64, 8 ਨਾਮ 72, 72 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 78, 8 ਏਕਮ 8 ਤੇ 7 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 15। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਦੂਣੀ 16 ਤੇ 17, यानी कि ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ 2 ਪਾਰਟ ਸੋਹਨ ਦੇ, ਸੋਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 7693 ਦੇ ਆ, ਤਾਂ 2 ਪਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 2 ਤੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 6, 9 ਦੂਣੀ 18, 6 ਦੂਣੀ 12 ਤੇ 1 13, 7 ਦੂਣੀ 14 ਤੇ 1 15, यानी कि ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ 15386 ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ 14 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ ਬੱਚੇ 8, 17 ਚੋਂ 8 ਕੱਢੇ 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, इधर अगे 4 3 ਕੱਢੇ 1, 17 5 ਕੱਢੇ 2, यानी सी 2198। सो साडा जिहड़ा आंसर आऊगा बच्चों वो आऊगा 2198। ठीक है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन सी, सौखा सी। सो अगे चलते हैं बच्चे। दोस्तों जिन्होंने साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों साडे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो, तो प्लीज़ दोस्तों विच अपने जरूर शेयर करो ताकि साडा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो कर सके, तो साडियां जिहड़ी वीडियोज़ ने बाकी बच्चों तक भी पहुँच सकन। ठीक है, आओ अगे चलते हैं। वो कहता 3 नंबर्स आर इन द रेशो 1/2। कहता 3 नंबर ने, मान लो कोई भी नंबर ने A B ते C, 3 नंबर्स ने, उन्हां दी जिहड़ी रेशो है वो 1/2 बट रेशो 2/3 ते 3/4 है। ठीक है दोस्तों, कहता इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 123, यानी कि कहता जिहड़ा सब तो वड्डा नंबर है तो जिहड़ा सब तो छोटा नंबर है उन्हां दा डिफरेंस है जिहड़ा वो 123 है। दैन फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर, तो जिन्ने भी नंबरस बन होणगे उन्हां सारे नंबरां दा जोड़ की होगा, असीं पता करना है। सो देखो पहली गल तो ये नंबरस की रेशो देती, और सानू ये भी पता है भी रेशो नूं असीं कदे फ्रैक्शन की फॉर्म दे विच नहीं लिख सकते। जे फ्रैक्शन दे विच हैगा तो सब तो पहला बेस बराबर करना पऊगा। बेस बराबर करने लई असीं की लैंदे आ एलसीएम, तो एलसीएम की आ गया 12। सो इनू 12 बनाने लई 6 नाल कीता, सो 6 कम की आ गया 6। इनू 12 बनाने लई 3 चौका 12, इनू 4 नाल कीता बच्चे, एक ही आ गया 4 दूनी 8। सो इनू 12 बनाने लई 4 ते 12 तो 3 उपर भी होगा। सो नो, आई थिंक सब नूं एलसीएम लेना आंदा होना। सो असीं कह दांगे A B C नंबर ने जिहड़े इन्हां दी रेशो की आ गई 6:8:9, यानी कि नंबर 6x हो गया, ये नंबर 8x हो गया, तो ये नंबर की हो गया 9x हो गया। वो कहता सब तो वड्डे ते सब तो छोटे नंबर का डिफरेंस, सब तो वड्डा नंबर की है 9x है, सब तो छोटा नंबर की है 6x है। इन्हां दा डिफरेंस देखिए, तो जे इन्हां दा डिफरेंस देखिए तो की आया 3x, जो कि कहता 123 के बराबर है।
ਜੇ 3x 323 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 41 ਆ ਗਈ। ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 41 ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 6x ਹੈ, b 8x ਹੈ ਯਾਨੀ 14x ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 9x ਹੈ। यानी कि अगर जे असीं देखिए तो सारे नंबरों का जोड़ 23x आ गया, यानी 23 × 41। तो तुसीं देख सकते हो 23 एकम 23 आ गया, 23 चौका 92, 92 ते 1 93। सो मेरे ख्याल नाल किते ऑप्शन दे विच गलती ना होवे। एक बार देख लो, 6 8 14, 14 ते 9, 8 6 14, ठीक है जी, बिल्कुल सही किया अपने। सब तो वड्डे नंबर ते सब तो छोटे नंबर का डिफरेंस 3x 123 के बराबर है। 92 सच इतने 943 आऊगा, ठीक है बच्चे। सो चेक कर लें, मेरे हिसाब नाल इस क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लोएस्ट नंबर इज़ 123 द सम ऑफ ऑल द नंबर, ठीक है बच्चे। सो मेरे ख्याल नाल यही आऊगा, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही अपना। चलो आगे चलते हैं। कहता एक कार कवर 2800 किलोमीटर इन 35 घंटे, यानी कि वो कहता एक कार ने 2800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया किन्ने घंटिया के विच, 35 घंटिया के विच कवर किया। द स्पीड ऑफ अ बस इज़ 4 किलोमीटर मोर आर दैन द 120% स्पीड ऑफ द कार, यानी कि जिन्नी कार की स्पीड होगी उसका 120% लईए, उसकी स्पीड का 120% जिन्ना भी आऊगा उस तो 4 किलोमीटर ज़्यादा कि स्पीड है, बस की स्पीड है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर द बाई द बस इन 3.5 आवर, यानी कि आपने दसना है भी जी कार है वो 3.5 घंटिया के कितना डिस्टेंस कवर करूगी। सो सब तो पहले तो बच्चे आप कार की स्पीड करते हैं। कार 2800 किलोमीटर का डिस्टेंस है जोड़ा वो 35 घंटिया कवर करती है, यानी कि डिस्टेंस हो गया किलोमीटर च, टाइम हो गया 35 घंटे, तो ये स्पीड ऑफ कार आ गई। स्पीड ऑफ कार देखो कितनी है, पहले सॉल्व करांगे। 7 5 35, 7 चौका 28, यानी कि कार की स्पीड जी आ गई वो 80 किलोमीटर आ गई। हुण कहता इस स्पीड का 120% जिन्ना भी आया, इस 20 का 120% जे आप कढ़ीए की आ गया 96 किलोमीटर आ गया। हुण ये 96 किलोमीटर आया, इस तो 4 किलोमीटर ज़्यादा कि स्पीड आ गई बस की। तो स्पीड ऑफ बस कितनी होगी बच्चे, जिन्नी ये स्पीड आई है कार की स्पीड के 120% तो 4% ज़्यादा, यानी 96 तो 4 ज़्यादा, तो आप कह देंगे बस की स्पीड कितनी आ गई 100 किलोमीटर आ गई। तो हुण आपां डिस्टेंस करना भी 3.5 घंटे कितना करूगी, 1 घंटे 100 किलोमीटर करती है तो 3.5 घंटे कितना करूगी, तो यानी कि डिस्टेंस कितना कवर करूगी 350 किलोमीटर। तो यानी कि वो बस 3.5 घंटे कितना डिस्टेंस कवर करूगी 350 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन से बच्चों। आओ अगे चलते हैं। कहता एलसीएम ऑफ 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर ने उन्होंने जो एलसीएम है बच्चे वो कितना 4752 है। तो नंबर कि रेशो च ने, आप नंबर मान लें ए बी सी ते डी ने, वो नंबर्स की जी रेशो है वो कहता 4:9:16:22 है। कहना फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लोएस्ट नंबर, यानी कि जो नंबर सब तो वड्डा होगा तो जो नंबर सब तो छोटा होगा उन्हों का डिफरेंस कढ़ना है। सो पहली गल तो बच्चे इन्हों का एलसीएम कढ़ो। ये नंबर मान लो 4x 9x 16x ते 22x ने। हुण जे आप इन्हों का एलसीएम कढ़ीए बच्चे, देखो एलसीएम तुसीं एवें ही कढ़ दो, फिलहाल की घड़ी तुसीं एं ले लो। पहला 2 ते गया या 2x ते गया तो इत्थे कितना आ गया देखो, या पहला तुसीं इहनूं x ते भेज लो। चलो पहला तुसीं इहनूं x ते भेजिया, सो जे x ते भेजे इत्थे कितना आ गया 4 9 16 ते 22, ठीक है। फिर तुसीं इहनूं 2 ते भेज लो, ठीक है। 2 ते भेजा 2 9 8 ते 11 आ गया। फिर 2 ते भेजा तुसीं, इत्थे कितना आ गया 1 9 4 ते 11 आ गया। फिर तुसीं इहनूं भेजिया, मान लो 4 ते ही भेजिया, इत्थे कितना आ गया 4 1 4 आ गया 11। फिर तुसीं इहनूं 9 ते भेज दो, फिर तुसीं इहनूं 11 ते भेज दोगे, कितने भेजोगे 11 ते। सो इहनूं 11 ते भेजता, सारे कट देंगे। सो एलसीएम आ गया थोड़ा x गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 11। सो ये आ गया एलसीएम थोड़ा, जो कि किहदे बराबर है 4752 के बराबर है।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਬੱਚੋ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 4752, ਇਹ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 दूनी 4 ਚੌਕੇ 16, 16 × 9 × 11 ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕੱਢਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 11 ਚੌਕੇ 44, 3 ਬਚ ਗਿਆ, 11 × 33, 11 दूनी 22, 432 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ 9 ਤੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, 9 ਚੌਕਾ 36, 7 ਬਚ ਗਿਆ, 9 8 72, 16 30 48, यानी कि x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22x, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4x। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢੀਏ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ 18x। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਹੈ, यानी कि ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 18 30 54। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 54। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਏ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 90 ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕੰਮ 90 ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 90 ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਗਾ 9 ਯੂਨਿਟ। ਇਹ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 90 ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਗਾ 5 ਯੂਨਿਟ। ਇਹ 9 ਦਿਨ 'ਚ 90 ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਗਾ 10 ਯੂਨਿਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 9 5 14, 14 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਦਿਨ 'ਚ 24 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਏ ਨੇ ਕੀਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 2 ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, यानी कि डबल वर्क ऑफ ए बी एंड सी 24 है। तो ए बी सी 1 दिन 'ਚ कितना करनगे? ए बी सी 2 थल्ले चला जाऊगा, यानी कि ए बी ते सी 1 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। अगर ए बी सी ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 90 ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ 90 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, यानी कि 12 7 84, 12 5 60, यानी कि 7.5 दिन 'ਚ। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आऊगा 7.5 दिन। ठीक है दोस्तों, सो आगे चलते हैं। वो कहता प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1242 एंड इट्स एलसीएम इज 54, दैन इट्स एचसीएफ कितना होगा? ठीक है, देखो पहली गल तो उन्हें की कहा भी 2 नंबर ने उन्हों का प्रोडक्ट है जोड़ा, मान लो एक नंबर ए है तो दूजा नंबर की है बी है। ठीक है, उन्हों का प्रोडक्ट है जोड़ा वो 1242 के बराबर है। एलसीएम जो दिता होया कि बराबर है 54 के बराबर है। तो एचसीएफ फाइंड करना सी। तो तुसी देखो एक चीज़ पढ़िया होना तुसी रिजल्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये तुसी पढ़िया होना। तो तुसी की करोगे ये विच वैल्यू पुट कर लोगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया 54, एचसीएफ थोड़ा पता नहीं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर देखो की है थोड़े को 1242। सो तुसी एचसीएफ कढ़िया तो तुसी कहोगे एचसीएफ की आ गया 1242 नूं तुसी 54 ते डिवाइड करता। जे तुसी इहनूं डिवाइड करोगे तो तुहाडा एचसीएफ की आ जाऊगा 23 आ जाऊगा, जिस नाल तुसी आंसर की दे दोगे 23। देखो पहला जे 5वीं ऑप्शन मैं पाई है डाटा रॉन्ग, 5वीं ऑप्शन दे विच नहीं सी, 4 ऑप्शनां ही सी, जिस हिसाब नाल तुहाडा आंसर 23 बनदा सी। बट मेरे हिसाब नाल ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि तुहाडा एचसीएफ है ना जिहड़ा वो हमेशा एलसीएम नूं डिवाइड करदा है। यानी कि तुसी कह सकते हो एचसीएफ हमेशा एलसीएम नूं डिवाइड करेगा, बट जे तुसी 54 देखो 23 54 नूं डिवाइड नहीं करता। सो इस करके डाटा रॉन्ग आंसर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का मैं ऑप्शन अपने वालों पाता तो इस क्वेश्चन का आंसर डाटा रॉन्ग होगा। ठीक है बच्चों, वैसे ऑप्शन के हिसाब नाल 23 बनूगा, बट उन्होंने डाटा रॉन्ग पाई नहीं सी। बट जे नूं आपां लॉजिकली देखिए तो डाटा रॉन्ग आंसर आएगा, डाटा इज़ रॉन्ग, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ है जिहड़ा वो हमेशा एलसीएम नूं डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, सो आगे चलते हैं। कहता पॉलीगन है 6 साइड दैन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। कहता एक पॉलीगन है वो 6 साइडां ने तो वह बाहरला एंगल कितना होगा? पहली गल तो जिहदियां 6 साइडां हुंदियां ने उन्होंने असीं हैक्सागन कह दिंदे आ। चलो नाम ना भी पता होवे तो तुहानूं पता होना चाहिए पॉलीगन की हुंदी है क्लोज्ड फिगर विद साइड, जिहदियां सारियां साइडां होण और क्लोज्ड होण उहनूं आपां पॉलीगन कह दिंदे आ। ये जिहड़ा एंगल हुंदा दैट इज़ द एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हुंदा। ठीक है जी, एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कढ़न का जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा बच्चे तुसीं लिख सकते हो, ये हुंदा बच्चे 360 डिवाइडेड बाय n। n की है जिन्नियां साइडां,
सो 360 हो गया, साइडां कितनियां ने साड़ियां 6 ने, तो तुसी कह दोगे कि हरेक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो इंटीरियर एंगल की होगा 120, क्योंकि ये पूरा 180 बनता है, पर उन्हें कल्ला एक्सटीरियर पूछा है, तो आंसर की आऊगा 360 डिवाइडेड बाय एन, एन की है जिन्नियां साइडां ने, यानी कि 60 डिग्री है। सो 6 साइडां ने, 360 डिवाइडेड बाय 6, सो इसका एक्सटीरियर एंगल की आऊगा 60 डिग्री आऊगा। अगला क्वेश्चन है, कहता इफ ए एंड बी स्टार्टड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹20,500 एंड 33,000 रिस्पैक्टिवली, यानी कहता एक ए है तो एक बी है, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, ए ने किन्ने इन्वेस्ट किए 20,500 रुपये इन्वेस्ट किए, तो बी ने 33,000 रुपये इन्वेस्ट किए। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि उन्होंने साल के एंड दे विच जिहड़ा प्रॉफिट होया वो 21,400 रुपये का होया, तो बी का शेयर दसना है। पहली गल तो देखो एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है बच्चों, ये एक रूल हुंदा भी जो आदमी जिस रेशो के विच इन्वेस्टमेंट करूगा उस रेशो के विच जे प्रॉफिट होया तो प्रॉफिट डिवाइड होगा, अगर लॉस होया तो लॉस डिवाइड होगा। सो हम पहले रेशो कटते इन्वेस्टमेंट की, 0 नाल 0 गया, देखो 6 5 के टेबल तो कट देंगे, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 छिका 30, 5 छिका 30, यानी कि ये प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो 41 रेशो 66 के विच डिवाइड होगा, यानी कि किन्ने हिस्सों 41 जमा 66 7 तो 107 पार्ट च डिवाइड होगा। सो असीं इहनूं 107 हिस्सों डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक हिस्सा 200 रुपये के बराबर आ गया। सो असी बी का हिस्सा पता करना है, सो 66 में 200 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 13,200। सो बी का शेयर कितना होगा 13,200 रुपये होगा। उम्मीद करदा बच्चों दोस्तों थोड़ा ये सीरीज़ बहुत वधिया लग रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करो तो कमेंट करके जरूर दसो थोड़ा ये वीडियोस किवें लग रही ने, ताकि असी होर वीडियोस लेके आइए थोड़े लिए, ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन है, कहता इफ 7 नवंबर 2019 नूं थर्सडे है, दैन वट डे विल बी द 7 नवंबर 2020, यानी कि वो कहता है 7 नवंबर 2019 नूं की सी बच्चे थर्सडे, थर्सडे का मतलब की हो गया वीरवार सी, ठीक है बच्चों। सो उन्हें पूछा 7 नवंबर 2020 नूं की होगा। देखो पहला 7 नवंबर तो लैके अगला 7 नवंबर है जोड़ा पूरा 365 दिन बाद आता है, यानी कि 365 दिन बाद पूछया, पर 2020 है पिछे 29 फरवरी 2020 वाला दिन भी काउंट हो गया, यानी कि एक दिन एक्सट्रा। सो 366 दिन बाद पूछया की होगा। 366 दिन के तुसीं जेकर हफ्ते बनाओगे तो 52 हफ्ते बनणगे और 2 दिन एक्सट्रा होणगे, यानी कि उन्हें पूछा थर्सडे है तो थर्सडे के 52 हफ्ते बाद बच्चे थर्सडे ही आऊगा, और थर्सडे के विच जे तुसीं 2 दिन ऐड कर दोगे तो की आ जाऊगा सैटरडे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा सैटरडे आऊगा, ठीक है। सो दोस्तों अज की वीडियो के इन्ना ही करते हैं, उम्मीद करदा तुहानूं वीडियो वधिया लगी होगी। सो अपने दोस्तों शेयर करियो, तो साडा एक ऑनलाइन बैच बच्चे शुरू होने जा रहा है PSSB बोर्ड वास्ते मैथ ते रीजनिंग का, असी कोशिश करांगे मैथ ते रीजनिंग का अलग तो बैच लाइए तो सारे सिलेबस का अलग तो। जेकर तुहाडे चों या तुहाडे किसी भी दोस्तां ने करना होवे तो प्लीज़ ग्रुप दे विच सानूं दसो, मैसेज करके दसो, या हेठां लिखे नंबर 98 148 94 729 नंबर पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। थैंक यू सो मच।